Yes, a very good afternoon to everyone. Welcome to CGB Mentors. Am I audible? Before we start our lecture, can you please confirm, am I audible to everyone? So that we shall proceed. So this is our new initiative of Agriculture Current Affairs. From now onwards, we will be going to discuss Agriculture Current Affair on every Saturday, exception today. Yes, very good afternoon, Mayank. Am I audible? Thank you so much for confirming. So from now onwards, we will be having our agriculture current affair, which are specially designed for your NABARD and other agri-related exams. Okay, so let's start with our today's lecture. So first one is in news is your ENAM. Okay, so why this ENAM is in news recently? ये क्यों है आपका recent? Just give me a second. हाँ. So why this ENAM is in news recently? So recently 10 new commodities were added in under this. ठीक है, जो ENAM के अंदर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज का ट्रेड होता है उसके अंडर they have added 10 more new commodities. Okay, now who have added? ठीक है, यहां से आपके MCQs बन सकते हैं. First, how many commodities were added? So there were 10 commodities were added. Next, who had added? So Directorate of Marketing and Inspection have added these commodities. Okay, now so what are these 10 commodities? ये 10 commodities हैं कौन कौन सी जो recently अभी add की गई है? So they are your dried tulsi leaf, besan, that is your chickpea flour, wheat flour, chana, sattu, okay, which is generally consumed in your UP, Bihar and specifically your North Indian states. Okay, then water chestnut flour, सिंघाड़ा जो होते हैं उसका आटा, ठीक है. आफ्टर दैट in spices, these were in your miscellaneous category, and after that spices category. In spices category they have added asafoetida, dry fenugreek leaves. What is asafoetida? दैट इज योर हींग, हींग को बोलते हैं. एंड ड्राइड फेनुग्रिक लीव, सूखी मेथी या कसूरी मेथी जो हम बोलते हैं. ओके, आफ्टर दैट वाटर इन वेजिटेबल्स, water chestnut and baby corn, and in fruits they have added dragon fruit. So these commodities were added in your were further added under ENAM for further trade. Okay, so let's discuss few things, and one more thing is there. Now how much commodities were there in ENAM? ENAM प्लेटफॉर्म पे अब टोटल कितनी कॉमोडिटीज हो गई है आफ्टर एडिशन ऑफ दीज? सो देयर वर टोटल 231 commodities after addition of these new 10 commodities. Okay, so now about ENAM कि ENAM है क्या? So first of all, this ENAM platform was launched in your 2016. कब इसको लॉन्च किया गया था? अप्रैल 14 2016 में इसको लॉन्च किया गया था. अब ENAM है क्या? लुक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर लाइक व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड व्हाई दे हैव लॉन्च्ड ENAM. सबसे पहले ये समझते हैं. सो इन इंडिया द मार्केटिंग स्ट्रक्चर इज वेरी फ्रेगमेंटेड, स्पेसिफिकली इन एग्रीकल्चर. ओके, सो लाइक ईच एंड एवरी स्टेट्स आर देयर. लाइक यूपी की APMC अलग है, बिहार की अलग है, साउदर्न स्टेट की डिफरेंट, ओके, एंड राजस्थान की अलग है. सो गवर्नमेंट थॉट कि दिस मार्केटिंग स्ट्रक्चर इज हाईली फ्रेगमेंटेड. ओके, क्या है? हाईली फ्रेगमेंटेड है, एंड फार्मर डिडंट गेट अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू सेल. ठीक है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, एंड दे वर एट लॉस. उनको जनरली लॉस में रहते थे बिकॉज दे विल नॉट गेट गुड अमाउंट फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, सो इट वॉज एन अर्जेंट नीड टू लॉन्च सम यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जो एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आए APMC मार्केट में. ओके, APMC मंडीज को इंटीग्रेट करे वेयर ईच एंड एवरी फार्मर एंड मंडीज एंड इवन द बायर्स एज वेल कैन रजिस्टर देमसेल्फ. लाइक आई एम अ बायर and you are a farmer and you want to sell something, both have to register on that ENAM platform. Okay, farmer and that buyer, okay, they both have to register on this ENAM platform for trading of their product. Okay, this buyer can purchase the product from this farmer at a particular rate, है ना, जो भी उनके बीच में नेगोशिएशन के बाद में जो रेट पे वो रीच आउट करेंगे, दे कैन परचेज दैट. ओके, सो
Why they have launched? To bring the uniformity in agriculture marketing, which was highly fragmented earlier. And when it was launched, यहाँ से question पूछा जा सकता है, and in NABARD, like twice or thrice this question was asked, that this was launched in on 14th April 2016. Okay, now who manage this? इसको manage कौन करता है? ठीक है, so the implementing agency or the managing agency for this ENAM is your Small Farmer Agri Business Consortium, that we call it as your SFAC. Okay, so this is your implementing agency. Now next, APMC mandis are there, ENAM is there, but still there is a problem of like lack of infrastructure in APMC मंडीज. अब वो उनके पास वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ही नहीं APMC मंडीज के पास, जिसकी वजह से वो रजिस्टर कर सके खुद को on that particular platform. So government need to make the hardware, software and electronic things available to them. अब वो अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 75 लाख रुपीज असिस्टेंस per APMC for upgradation of their infrastructure. Okay, so how much assistance was given to them? That is your 75 lakh. Now let's have a quick revision. When this ENAM was launched, it is launched on your 14th April 2016. Which is an implementing agency. कौन इसको implement करता है? That is your SFAC, Small Farmers Consortium, Agribusiness Consortium. Why it is in news recently? It is in news recently because 10 new commodities were added in it. And how much the number of commodities has reached? That is your 231. Okay. Next is your market intervention scheme. So what is this market intervention scheme and why it is in news recently? It is in news recently because government has revised lot of guidelines under it. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके अंदर काफी सारी गाइडलाइंस को जो है रिवाइज किया है. ओके, सो व्हाट इज दिस MIS स्कीम? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या? लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस स्कीम इज इन अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ योर PM आशा स्कीम. कौन सी स्कीम का है ये कॉम्पोनेंट? PM आशा स्कीम. ठीक है, नाउ लुक हियर. अब फार्मर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है? व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम द फार्मर्स फेस? गवर्नमेंट प्रोवाइड MSP, minimum support price, for few crops, like some cereals are there, some pulses are there. Okay, major crops के लिए MSP आपका प्रोवाइड करा देती हो, but still there are other crops as well. There are vegetables as well. If I'll talk about vegetables, okay, so these vegetables are like mostly the farmer face problem with the price na is with regard to the yes, 22 crops are there for which the government is providing MSP, but still there are other crops as well, like your vegetables, TOP, tomato, onion, potato, and cauliflower, cabbage, means lot of vegetables, and where farmer faces loss. Okay, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, क्या like tomato, just take an example of a tomato, like in a particular year the production of tomatoes very high. ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया तो टोमेटो जो है कितने का मिलता है? 10 रुपये kg, 20 रुपये kg. अब मार्केट में ही हमें वो 10-20 रुपये kg मिल रहा है, तो लुक फार्मर से वो कितने में परचेज कर रहे होंगे, है ना? तो फार्मर से तो बहुत कम में परचेज कर रहे होंगे, लाइक 2-3 रुपीज kg, है ना? सिमिलर गोज विद द cauliflower एंड कैबेज एज वेल. द फार्मर्स इन योर पंजाब हरियाणा फेसेस दिस प्रॉब्लम एवरी ईयर कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड द फार्मर हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट एट ए वेरी लेस रेट टू द बायर्स. ओके, मंडी में वो बहुत सस्ते रेट पे बेचते हैं अपने प्रोडक्ट को. सो दे आर एट अ लॉस क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वहां से पूरा नहीं हो पा रहा है. एंड आफ्टर दैट like cost of production is there. Now this vegetable farming require lot of labor as well. It require post harvest as well, है ना? कोल्ड स्टोरेज देनी होगी, वॉशिंग होगा, प्रॉपर पैकेजिंग होगा. सो उनको उनके पास में वो पर्टिकुलर अमाउंट आ ही नहीं पाता है, सो दैट that can be profitable to them. So for that, जिन प्रोडक्ट्स के लिए MSP नहीं गवर्नमेंट रिलीज करती है, गवर्नमेंट हैव दिस स्कीम दैट इज योर MIS. अंडर दिस MIS स्कीम व्हाट दे डू, लाइक आई विल टेल यू इन ब्रीफ कि इसके अंदर करते क्या है. लुक हियर,
Now I am having the tomato. Okay, last year the price was like 50 rupees per kg. Okay, the price was 50 rupees per kg. Okay, and at this price, like set by government, or this was based on your cost of production, की cost of production के बाद इतना मेरा price में गया, तो there will be a profit and cost of production, everything is there. Like it is, this 50 rupee per kg is profitable to the farmer. But this year they are selling at only 15 rupees per kg. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत दूर की, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरा नहीं हो रहा है. सो फ्रॉम हियर गवर्नमेंट सेड दैट कि ओके, यू जस्ट सेल दैट टोमेटो इन मंडी एट दिस प्राइस, आप सेल कीजिए एट दिस प्राइस 15 रुपए के जी, एंड वी विल प्रोवाइड यू द रिमेनिंग अमाउंट. जो लास्ट ईयर आपका 50 रुपीज था, सो 15 एंड 50, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, वी विल प्रोवाइड यू दैट. कितना हुआ? 35 रुपीज. सो द गवर्नमेंट विल गिव द दिस 35 रुपीज, और वी विल परचेज फ्रॉम यू. Got my point? Understood what is the concept of this MIS scheme? कि ये है क्या? Now look here, what are the changes in the guidelines? अब क्या इसमें recently जो changes हुए हैं वो क्या हुआ है? So look here, this scheme is a component of PM Asha scheme. First of all, किसका component है ये? PM Asha scheme. Okay, after that this scheme is implemented by government ने तो launch कर दी, implement कौन करेगा? Who will be the implementing agency regarding the regarding your agriculture products? Your state government. Okay, because agriculture comes under your state subject, so this will be implemented by your state government for those crop. कौन सी crops के लिए? For those crop where MSP is not provided. Okay, जिनके लिए MSP आपका नहीं मिलता है. Now what are the recent guidelines? So the recent guidelines are that this scheme will only be implemented when the price of the product is reduced to 10%. ठीक है, कितना कम हो गया है? 10% से मिनिमम रिडक्शन, कम से कम उसके प्राइस में 10% का रिडक्शन होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम. लाइक लास्ट ईयर आई हैड सोल्ड इट एट अ 50 रुपी kg, देन मिनिमम रिडक्शन शुड बी 10%. लाइक दिस ईयर द फार्मर इज सेलिंग एट अ 45 रुपीज. 50 का 10% 5 एंड दैट इज योर 45 रुपीज. ठीक है, तो 45 रुपीज का रिडक्शन जब आएगा, उसके बाद ये स्कीम आपकी लागू होगी. ओके, मीन्स 10% रिडक्शन शुड बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम. ओके, नाउ earlier the government can procure up to 20% of the total production. कितना प्रोक्योर कर सकती थी गवर्नमेंट? 20%. Recently they have revised this guideline and they have increased the procurement limit up to 25%. ठीक है, जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, लाइक आई हैव प्रोड्यूस्ड 100 क्विंटल ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम माय फील्ड, मैंने टोमेटो 100 क्विंटल प्रोड्यूस की. सो गवर्नमेंट अर्लियर कैन प्रोड्यूस 20 क्विंटल. कितना प्रोक्योर कर सकती थी मेरे से? 20 क्विंटल. बट दिस ईयर दे कैन प्रोक्योर अप टू योर 25%. ठीक है, अब वो 25 क्विंटल यहाँ मेरे पास से प्रोक्योर कर सकते हैं. सो दीज टू थिंग्स वर एडेड नाउ. Okay, now the state has also given the state, earlier they can procure as well. State government जो है वो directly farmer से procure भी कर सकती हैं. Okay, and now they have given the option that you can give the price difference. कि last year I have sold at 50 rupees. जो मैंने आपको अभी समझाया था ना कि this 35 rupees state government can procure directly from the farmer. 25% if they are not procuring, वो स्टेट गवर्नमेंट फार्मर से खरीद नहीं रही है, देन दे कैन प्रोवाइड, द फार्मर कैन सेल टू द मंडी, वो मंडी में इस प्राइस में बेच सकता है, एंड द गवर्नमेंट कैन गिव दिस डिफरेंस ऑफ द मनी इन द डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर. ओके, डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली उनके अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. नाउ दिस ऑप्शन वाज आल्सो गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब ये तो हमने पढ़ लिया. नाउ दीज वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर. ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने परचेज भी कर लिया या अदर एजेंसीज ने परचेज कर लिया ना, हु विल बियर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, कौन बियर करेगा वो कॉस्ट? नाउ दैट कॉस्ट विल बी बियर्ड बाय दीज अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक योर नेफेड इज देयर, ओके, योर NCCF is there, so these was beared by these organization. Okay, understood? Just so let's just revise this scheme. Government have revised the guidelines of MIS scheme, and under this MIS scheme, what are the guidelines? Like the minimum reduction in the cost of production or the price should be 10%. कितना मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए? 10% होना चाहिए. एंड नाउ दे हैव रेज द लिमिट ऑफ द प्रोक्योरमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम 20 to 25%. ओके, एंड now the state government can give the price differentiation directly in the bank account of the farmer, and who will bear the transportation cost? The central government agencies like NEFED and NCCF will bear the transportation cost. This is in the brief for this particular scheme. Now look here, the government of India, next use it, the government of India have approved the government of India have approved or raised the timeline of this particular scheme, that is your PM Asha scheme. And what is the full form of this PM Asha scheme? Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. So what was the sunset clause? अब इसको कितना increase कर दिया है? Till the 15th financial cycle. Okay, 15th financial cycle तक इसको raise कर दिया है. And what was the limit for that? जो 15th financial cycle थी हमारी, कितना था? 2021 to 22 से लेकर के 2025 to 26. This scheme was about to end, but they have extended it up to the 15th financial cycle, which is going to end in 2025-26. Okay, now one thing will come under this PM Asha scheme. This is in a price. This scheme is for the empowerment and protection of the farmers from this price fluctuation. I'll tell you in this brief कि ये इसके लिए ये scheme आपकी launch की गई थी. Now what are the integrated components? इसमें different components कौन कौन से हैं इस particular scheme में? So one component we have discussed, that is your MIS. ठीक है, market intervention scheme. There was price support scheme also there in this particular scheme, price deficiency payment scheme, and price stabilization fund. ठीक है, so these are the sub component under this schemes. Okay, and who and what are the other agencies which are involved in this scheme? That is your Department of Agriculture and Farmer Welfare, your PSS, PDPS. Okay, so these are your involved under this particular scheme. So what is the important क्या important है कि इसका sunset clause कितना हो गया, अभी कितना उसको increase कर दिया. Okay, understood everyone? So next news is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So this is in a very important scheme, and I have seen every year there were few questions from this scheme in every exam, agri related exam जितने भी है सभी में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर स्कीम पे डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस. व्हाई दिस इन न्यूज? बिकॉज दिस स्कीम हैज कंप्लीटेड इट्स 9 ईयर. इसने रिसेंटली अभी कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं आपके? 9 ईयर अभी रिसेंटली कंप्लीट कर लिए. व्हाई दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड? क्यों लॉन्च किया गया था एंड कब इसको लॉन्च किया गया था? सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड to provide the protection to the farmer. Like agriculture is highly susceptible to the climate change. और जैसे जैसे अब climate change हो रहा है तो आपकी क्या है, फसल फार्मर की खराब हो जाती है. ओके, लाइक एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग बारिश हो गई, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी. एंड ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ वीट की राइपनिंग के टाइम में क्या होगा आपका, लाइक टेम्परेचर बहुत, like it require an optimum temperature of 20 to 25 degree Celsius. अब टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया. इफ़ द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई तो राइपनिंग जो है बहुत फास्ट हो जाएगी. सो द ग्रेन वेट विल नॉट बी पर्टिकुलर. अगर पहले हो जाएगा तो राइपनिंग अच्छी नहीं होगी. ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम में हेल स्ट्रॉम हो गए, थंडर स्ट्रॉम हो गया. सो द एग्रीकल्चर इज हाईली सस्पेक्टेबल टू द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स. सो फार्मर विल बी एट लॉस. फार्मर को तो लॉस ही होगा कि उसकी पूरी फसल उसने ग्रो की एंड दैट इज कंप्लीटली वेस्टेड. नो मनी विल कम फ्रॉम देयर. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज just
वेट अ मिनट. हाँ, so to protect the farmer from these type of uncertainties, government has launched this particular scheme, that is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. कौन से साल में की थी? 2016 में. किसने की थी? कौन सी मिनिस्ट्री ने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. सो now look here, this year they have continued this scheme. इस स्कीम को कंटिन्यू रखा है, ओके, टिल 25 26 विद द आउटले ऑफ, कितना आउटले रखा है इसका? 69,551.71 करोड़. ठीक है, बजट में जो रिसेंटली है इसका आउटले इतना रखा है. ओके, नाउ प्रीमियम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम. ये बहुत सारे पेपर में आपका पूछा जाता है. ठीक है, सो लुक एट हाउ मच प्रीमियम विल बी प्रोवाइडेड टू दैट. 2% फॉर द खरीफ क्रॉप एंड ऑयल सीड क्रॉप. ठीक है, अगर मेरी ऑयल सीड क्रॉप या खरीफ क्रॉप खराब हो जाती है तो फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आई विल गेट दिस 2% ऑफ प्रीमियम. मुझे इतना प्रीमियम मिलेगा. नाउ लुक एट वन थिंग, एक थोड़ा सा एडिशनल में देख लेते हैं. खरीफ क्रॉप क्या होती है? Answer me in the comment section. When this kharif crop was grown, कब ग्रो की जाती है? What is the timeline? So the crop which are grown in the summer season, जो समर सीजन में आपकी ग्रो की जाती है, स्पेसिफिकली और आफ्टर अप्रैल, हार्वेस्टिंग ऑफ दिस रबी क्रॉप, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ दिस रबी क्रॉप, अप्रैल में जो सोइंग होती है, अप्रैल जून जुलाई, इफ आई टॉक मोर स्पेसिफिक. ठीक है, समर सीजन क्रॉप है, जून जुलाई में आपकी सोइंग होके सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है. सो दैट इज योर खरीफ क्रॉप. जस्ट आंसर मी फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप बताइए मुझे खरीफ क्रॉप के. ओके, नाउ रबी क्रॉप, the premium provided for this, yes, very good Mayank, they are sown in June July and harvested in October. Yes, others as well. Now for rabi crop 1.5% premium was provided. अब रबी क्रॉप क्या है? These रबी क्रॉप आर सोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ये विंटर सीजन जैसे ही आपका हार्वेस्ट हो जाएगी खरीफ क्रॉप सितंबर में, सो लेट अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर नवंबर में, यस वेरी गुड, पैडी एंड मेज, अक्टूबर नवंबर में इनकी सोइंग की जाती है रबी क्रॉप की एंड दे वर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मार्च एंड तक इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है. आफ्टर दैट देयर वर कॉमर्शियल क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एज वेल. सो here 5% premium will be provided for these crop. Now 100% premium will be provided for, मतलब जितना भी प्रीमियम बनता है everything will be provided by the government for नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ठीक है, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड योर जम्मू कश्मीर. 100% प्रीमियम विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स एज वेल अंडर दिस स्कीम. नाउ अब ये जो क्लेम है, ठीक है, द एम इट एम टू प्रोसेस द क्लेम. अब कितने दिन में वो क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए? ठीक है, ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी टालती जाएंगी, लाइक फार्मर हैव टू हार्वेस्ट इट्स क्रॉप इनटू योर अक्टूबर, उसको अक्टूबर में वो क्रॉप हार्वेस्ट करनी थी. ठीक है, लुक, अ फार्मर हैव टू हार्वेस्ट मिलेट इन अक्टूबर. ठीक है, अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट करना था मिलेट, बट ड्यू टू हैवी रेनफॉल this millet crop failed completely. अब fail हो गई. Now the farmer need money for the रबी सीजन क्रॉप, बिकॉज रबी की सोइंग कब होगी? नवंबर में होनी ही है. लाइक द फार्मर विल गेट ओनली द 2 month पीरियड फॉर दिस. अगर समझ के याद करोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी. बिकॉज हार्वेस्टिंग के बाद सोइंग का रबी का क्रॉप का कितना टाइम रहेगा? मैक्सिमम, आई एम टेलिंग यू द मैक्सिमम, दैट इज 2 month. Okay, now the farmer didn't get any money from this particular crop. जो पिछली previous crop थी वहां से कोई पैसा उसको मिला नहीं. So if he will not get the insurance claim, उसको insurance claim नहीं मिलेगा तो क्या होगा? He will
ही विल गेट सम मनी फ्रॉम अदर बाय, जो ये इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स होते हैं इनके पास से वो क्या करेगा, सम मनी लैंड करेगा एंड ही विल स्टक इन द डेब्ट ट्रैप, वो डेब्ट ट्रैप में फंस के रह जाएगा. सो द गवर्नमेंट मेड द गाइडलाइन हेयर दैट द इंश्योरेंस कंपनी हैव टू प्रोवाइड दिस इंश्योरेंस अमाउंट इन 2 months. कितने मंथ्स में उसको प्रोवाइड करना है, 2 month में उसको प्रोवाइड करना है, सो दैट दे कैन हैव द मनी फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ सोइंग. ठीक है, उनके पास नेक्स्ट सीजन जो आएगा उसकी सोइंग के लिए उनके पास पैसे बचे रहे. ओके, गॉट इट, जस्ट वेट. ओके, सो द इंश्योरेंस कंपनी हैव टू प्रोवाइड इट इनटू 2 months. जो इंश्योरेंस मनी है वो कितने में करना है, 2 month में प्रोवाइड करना है. इफ द इंश्योरेंस कंपनी इज फेल टू प्रोवाइड दैट मनी इन 2 month, अगर वो 2 महीने में नहीं पे कर पाई, देन और 2 महीने में नहीं पे किया एंड दे हैव डिलेड इट बियॉन्ड 30 days, और 2 महीने से ज्यादा और डिले कर दिया अप टू 30 days, देन दे हैव टू पे द 12% इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विच वॉज नीड टू बी पेड टू द फार्मर. जो अमाउंट फार्मर को पे करना था इंश्योरेंस कंपनी ने, उस पर उसको 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ ये चीज होगी. नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम विद द स्कीम्स एज वेल, कि इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना शेयर रिलीज करती है टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड दैट मनी टू द फार्मर. Okay, this is the thing. Now if the state government fail to release that money in the 3 month, ठीक है, 3 महीने तक अगर स्टेट गवर्नमेंट वो मनी फार्मर को रिलीज नहीं कर पाती है, देन द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो लायबल टू पे 12% इंटरेस्ट टू द फार्मर. ठीक है, 12% ब्याज फार्मर को देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने भी, इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज फेल टू पे दैट मनी और टू रिलीज दैट मनी टू द फार्मर्स. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द कवरेज, कौन कौन से रिस्क या कौन कौन सी चीजें इसमें कवर्ड की गई हैं. सो अर्लियर देयर वर सम सोइंग के टाइम और हार्वेस्टिंग के टाइम जो प्रॉब्लम्स होती थी या फसल जो खराब होती थी वही कवर किया गया था. बट रिसेंटली विद द इवोल्यूशन ऑफ दिस स्कीम, मोस्ट ऑफ द risks are covered under this scheme, that is your yield loss. ठीक है, अगर मेरी स्टैंडिंग क्रॉप है एंड इफ सम क्लेमिटीज हैपन, हाई रेनफॉल और सम फंगल इन्फेक्शन, डिजीज एंड पेस्ट इज देयर, देन I'll get the insurance. After that, prevented sowing. अब prevented sowing क्या है? Like I have to sow my crop. मुझे मेरी crop sow करनी है in the month of June. Okay, between the 1st and 15 June. This is the time. Because अगर मेरा sowing का time delay होता है ना, then there will be a lot of problem with the crop cycle. So I have to sow this in this amount. This time period, but at this time period there was in some region like there was some flood is there, thunderstorm is there, या कोई pest attack है या fungal infection is there, like farmer failed to sow the seeds, or if he had sowed, उसने sow तो कर दिया but after sowing there was a heavy rainfall, तो वो sowing germination नहीं हो पाई. Okay, so due to all these problems, when farmer fail to sow or the seed will not germinate, that is also covered. After that, post harvest losses are also covered, but there was a condition with the post harvest loss, like the farmer have to register the post harvest loss in 14 days maximum. उसको 14 day के अंदर inform करना पड़ेगा कि भाई मेरी क्रॉप खराब हो चुकी है. ऐसा नहीं है ना कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस विल नॉट काउंट लाइक दैट ना, कि मैं आई हैव a crop. Yes, Maya, very good afternoon. This will not be like that na, ki I am having a crop. Okay, I have harvested the crop and after 1 month there is some fungal infection due to the storage. मैंने storage ठीक से नहीं की या फिर due to some of my problems my crop got deteriorated. Okay, and then I will go to claim the money. So that will not be the case. Calamities are also counted here. Localized calamities क्या है? जैसे like there was some drought in मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में drought है but हरियाणा राजस्थान में नहीं है. So that is your localized calamity. Thunderstorm in गुजरात है ना, like some pest attack like in southern states में हो गया.
So these are localized calamity, that is these are also counted under this particular schemes. Okay, eligibility, कौन eligible है? All the registered farmer are eligible under this particular scheme. And one more thing is there, insurance के लिए apply कब करना है? Within 2 weeks of sowing. Like I want to sow my crop on the 15th of June, so I have to register for it from 1 to 15, मतलब 2 हफ्तों के बीच में सोइंग के मुझे उसको रजिस्टर करना. Now next scheme is your next scheme which is in news is your soil health card. Why this scheme is in news? Because this scheme has completed your 10 year. इसने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं? 10 साल कंप्लीट कर लिए. अब 10 साल कंप्लीट कर लिए तो ये कब लॉन्च की गई थी? दिस स्कीम वाज लॉन्च इन February 2015 एट सूरतगढ़ राजस्थान. ठीक है, सूरतगढ़ राजस्थान में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. नाउ व्हाई दिस स्कीम वाज लॉन्च? लाइक Indian soil na are deficit in lot of nutrients and farmer uses your faulty agriculture practices. Yes, ठीक है, वो faulty agriculture practices use करते like heavy irrigation, heavy fertilizer, due to which deterioration of the soil is there. Soil खराब हो गई तो हमारे प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा तो फार्मर को मनी नहीं मिलेगी एंड इट विल हैम्पर आर एनवायरमेंट एज वेल, हमारा एनवायरमेंट भी खराब होगा. सो for providing that and one more thing, there is a lack of testing facilities. soil के लिए testing facilities भी available नहीं थी. So to improve that thing, government have launched this scheme in 2015. ठीक है, एट सूरतगढ़ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था, सो दैट द फार्मर कैन हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेस्टिंग ऑफ देयर सॉइल सैंपल एंड फॉर विच दे कैन गिव देम अ कार्ड. For that, these testing agencies give them a specialized like what can I say, specialized card was given to them so that they can put nutrient according to that. ठीक है, कि कितनी उसमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें ऐड कर सके, वो उनको प्रोवाइड किया जाता था. ठीक है, सो लुक हियर, this scheme was launched to assist the state government and our country's farmers so that they can assess their soil कि वो किस चीज में डेफिशिएंट है, अकॉर्डिंगली वो उतना ही न्यूट्रिएंट और उतना ही फर्टिलाइजर उसमें यूज कर सके. नाउ व्हाट वाज द टैगलाइन ऑफ दिस स्कीम? द टैगलाइन ऑफ दिस स्कीम वाज स्वस्थ धरा खेत हरा. ठीक है, the tagline of this scheme is स्वस्थ धरा खेत हरा and this is a PYQ of NABARD. ये 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजन. यस मयंक, नाइट्रोजन में डेफिसिट भी है एंड ड्यू टू विच द फार्मर यूजेस हाई यूरिया फर्टिलाइजर बट आर सॉइल आर डेफिसिट इन अदर थिंग्स एज वेल लाइक फॉस्फोरस. ओके, इनमें भी डेफिसिट है. सो phosphorus में and other micronutrients as well. There are some problem of acidic soil, saline soil and farmers जो उनके पास में एक specialized knowledge नहीं होती है कि उनको क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है, due to which they just going to add nitrogen, यूरिया वो बहुत ज़्यादा excess amount में use कर लेते हैं, due to which our soil get deteriorated. तो this scheme इसलिए ही launch की गई थी कि उनको एक specialized knowledge मिल जाए कि किस चीज़ में आपकी soil deficit है, किस में नहीं है. So accordingly they can use the fertilizer according to that. Okay, now look here. This these soil health card was provided to the farmers in most of the major languages. ठीक है, जितनी आपकी major languages है country में जो भी हैं उन सभी में ये provide किया जाता है farmers को and in 5 dialects में आपको provide कराया जाता है so that farmers can easily understand the things, the problem with their soil. Okay, now लुक है, अब ये सॉइल हेल्थ कार्ड है क्या और क्या क्या इसमें एसेस किया जाता है. सो अंडर दिस सॉइल हेल्थ कार्ड द टेस्टिंग फैसिलिटीज और लैब्स विल टेस्ट द सॉइल ऑन 12 पैरामीटर. कितने पैरामीटर्स पे वो उसको टेस्ट करते हैं? 12 पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं. एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स? दे विल एसेस माइक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर. दीज आर योर मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो इनको वो एसेस करेंगे. आफ्टर दैट माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड बोर. ठीक है, इनको एसेस करेंगे. आफ्टर दैट देयर वर सम पीएच को एक्सेस करेंगे, दैट इज योर
एसिडिटी और बेसिसिटी की, सॉइल में मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम है या बेसिसिटी की प्रॉब्लम है. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल ऑल्सो बी चेक्ड. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज चेक्ड. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों चेक करते हैं हम सॉइल की? बिकॉज इफ विल चेक द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी विल गेट टू नो अबाउट द सोडियम पोटेंशियल, कि सॉइल में सोडियम कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है. अगर वो बहुत ज्यादा होगी देन सोडियम इज अ हाईली डेंजरस टू द सॉइल बिकॉज इट विल डिग्रेड द सॉइल स्ट्रक्चर. वो सॉइल स्ट्रक्चर को कंप्लीटली खराब कर देता है. ओके, सो दैट इज. एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिक कार्बन इज एसएस. अब यहां से एक छोटी सी चीज बताते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट. हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट? कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है? देयर वर 17. ठीक है, 17 are required, out of which some are basic, after that macro and micro. Okay, in basic there is carbon, hydrogen and oxygen, and in macronutrient NPK, they are your primary. After that sulfur, calcium and magnesium, that is your secondary. After that there are micronutrients. Very good. 17 there were micronutrient: iron, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, निकल, जिंक, और क्या बच गया? क्लोरीन इज देयर एंड मॉलिब्डेनम इज देयर. ओके, दीज वर योर माइक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है, ये मैक्रो है, माइक्रो है, एंड दीज वर योर बेसिक, दैट इज योर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी व्हिच इज द 17th एसेंशियल एलिमेंट विच वाज एडेड इन द लिस्ट. सबसे लास्ट कौन सा ऐड किया गया था? ठीक है, तो इन पे आपके सॉइल सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है एंड द सॉइल सैंपल्स वर टेकन. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, द सॉइल सैंपल्स वर टेकन ट्वाइस अ ईयर. 2 बार हम उसको लेते हैं बिफोर द आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप. जैसे ही मेरी रबी क्रॉप हार्वेस्ट हुई, आफ्टर दैट आई विल टेस्ट माई सॉइल. मैं अपनी सॉइल को टेस्ट करा सकती हूँ एंड खरीफ के बाद भी, बिकॉज आफ्टर दैट क्रॉप ना वी विल बी हैविंग अ डिटेल कि भाई प्रीवियस क्रॉप ने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को एग्जॉस्ट किया है एंड विच न्यूट्रिएंट्स वर रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. ओके, हाँ, यस, वेरी गुड. इट्स निकल. निकल को सबसे लास्ट में ऐड किया गया था. Now next one of the most important thing with this scheme is that this scheme was merged in राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. ठीक है, इसको 2022 में the scheme in 2022 was merged with राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से इसको मर्ज कर दिया गया था इस स्कीम को, बिकॉज अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट इज योर अम्ब्रेला स्कीम. वो आपकी अम्ब्रेला स्कीम है, लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, योर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, योर नेशनल agriculture organic farming. Lot of the schemes were added under this Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Now answer me in the comment section which are the schemes which are merged with this particular scheme and when this Rashtriya Krishi Vikas Yojana was launched. ठीक है, कब इसको लॉन्च किया गया था, कौन कौन सी स्कीम्स जो है इसके अंडर ऐड की गई थी. ओके, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. Next news is that Pradhan Mantri has released the 19th installment. कौन सी इंस्टॉलमेंट रिलीज की उन्होंने? 19th इंस्टॉलमेंट रिलीज की है अभी रिसेंटली ऑफ द पीएम किसान स्कीम. ठीक है, कितनी टोटल इंस्टॉलमेंट्स हो गई है इसकी? 19th इंस्टॉलमेंट हो गई है विच वॉज रिलीज रिसेंटली एट द बिहार. कहाँ पे इसको लॉन्च किया है? कहाँ पे इसको रिलीज किया है? बिहार में इसको रिलीज किया है इसको. नाउ व्हाट इज पीएम किसान? पीएम किसान, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर द प्राइस सपोर्ट. ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द फार्मर बाय गिविंग देम 6,000 रुपीज. कितने बार प्रोवाइड करते हैं? एट 3 month और 4 month और एट 6 month? बताइए, ये तो बहुत पुरानी स्कीम है ना. चलो आंसर कीजिए. सो टू प्रोवाइड द 6,000 रुपीज पर ईयर, दैट इज इन इट वॉज रिटर्न, लिखा हुआ है यहाँ पे. सो दैट इज इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट. 2,000 रुपए करके 3 बार फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, फॉर दैट कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट, प्राइस मनी सपोर्ट फार्मर्स को मिल जाए ऑफ द 6,000 रुपीज. एंड दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन 20
2019। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था एंड दिस स्कीम वाज launched by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Now few things are also there, like do all the farmers are eligible? क्या सारे के सारे yes, very good, 3 times. क्या सारे farmers eligible हैं under this scheme? बताइए. I'll tell you one thing. There are some important points under this scheme, like PM Kisan mobile app was also launched. ठीक है, PM इस scheme के अंदर आपका मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी. दैट वाज ऑन योर 24 फरवरी 2020 एंड AI चैटबॉट was also named. एक AI चैटबॉट भी है जो फार्मर्स को इस स्कीम के रिगार्डिंग हेल्प करता है. दैट इज योर PM नॉट PM, किसान ई मित्र. ठीक है, ये आपकी जो ऐप है वो किससे रिलेटेड है, कौन से स्कीम से रिलेटेड है ये चैटबॉट? इट इज रिलेटेड टू द PM किसान स्कीम. ओके, एंड द टोटल इंस्टॉलमेंट्स जो है अभी तक 19th इंस्टॉलमेंट हो चुकी है एंड 22 करोड़ रुपीज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. यस, नॉट ऑल द फार्मर्स आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. ठीक है, सारे के सारे एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंदर. ओनली फ्यू फार्मर्स आर एलिजिबल विच हैव रजिस्टर्ड लैंड होल्डिंग है. बट इफ समवन इज लाइक इन योर ग्रुप A, B जॉब्स, दैट इज नॉट एलिजिबल. गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल नहीं है आपके. ओके, एक पर्टिकुलर इनकम के बाद में आपके फार्मर्स एलिजिबल नहीं है. वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कसिंग दीज स्कीम्स. ओके, वहाँ एलिजिबिलिटी से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, सो रीड दैट. नाउ this is again very important. Government have set a target to establish 10,000 FPOs. Government ने एक target रखा था in 2020 that yes, only group D are eligible. Government have set a target of establishing 10,000 FPOs. 10,000 FPOs को establish करने का कब रखा था ये target? In 2020. ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैव अचीव्ड दिस टारगेट एट बिहार. बिहार में जो है आपका इस टारगेट को लॉन्च कर लिया है, सॉरी अचीव कर लिया है गवर्नमेंट ने. अभी जहां पर ये आपकी 19th इंस्टॉलमेंट PM किसान की रिलीज की थी ना, एट दैट डे दे हैव दिस 10,000 FPO that is in your Khagaria district of Bihar. ठीक है, कहां पर है ये? बिहार के अंदर. दैट इज योर 10,000 FPO विच विल वर्क इन योर मेज बनाना एंड पैडी क्रॉप. जिस FPO का काम क्या है? फॉर द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ मेज बनाना एंड पैडी. नाउ व्हाट वाज दिस टारगेट एंड व्हाई दे हैव सेट? So this target was set in 29 February 2020 and with a total outlay of 6,865 crore and they have to spend that and they have to reach this target at till 2027. 2027 तक उनको ये 10,000 FPO का टारगेट रीच करना था, बट उन्होंने उससे पहले ही रीच कर लिया इन 2025. ठीक है, 2025 24 फरवरी 2025 में ही ये टारगेट गवर्नमेंट ने रीच कर लिया है. नाउ वन मोर थिंग, अब ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. आप जब डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे ना, मे बी देयर वाला क्वेश्चन है FPO या फार्मर एम्पावरमेंट पे कोई क्वेश्चन आ गया या मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, देन इफ यू आर राइटिंग द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट देन यू कैन राइट अबाउट इट कि गवर्नमेंट हैव सेट अ टारगेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग 10,000 FPOs एंड विच वाज रीच्ड वेरी अर्ली इन 2025. ठीक है, उसकी डेडलाइन से पहले ही वो रीच हो गया. तो दिस विल हेल्प इन योर फोर्टिफाइंग ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव आंसर. ओके, अब FPO क्या है? जो न्यू कमर्स होंगे या बिगनर्स होंगे, दे विल नॉट बी अवेयर अबाउट दैट. लाइक FPO इज अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स हु आर इन्वॉल्व इन अ कॉमन प्रैक्टिसेस. ठीक है, जो कॉमन क्रॉप आपकी ग्रो कर रहे हैं, जो कॉमन विच हैव कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, लाइक there are 20 farmer and each and every farmer grows tomato there but they have not market accessibility. Okay, उनको काफी सारी problem, so they come together and they form an organization regarding that particular product. Okay, so this is your FPO and since the launch of this scheme, जब से ये scheme launch की गई है, 254.4 crore rupees was been released with the equity grant. इतना इनको release कर दिया गया है. Okay, and this is a very important point here.
if the role of women was asked in any descriptive, you can write it here. So look here, 30 lakh farmer. Till now 30 lakh farmers are benefited or they are connected with the FPOs, and out of this 30 lakh farmer 40% are women. जो ये है आपके 40 लाख फार्मर, उसमें से जो 30% 40% है वो वुमेन है, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर डिस्क्रिप्टिव. नोट दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट. अब इसमें गवर्नमेंट कितना सपोर्ट प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट ने सेट तो कर दिया कि वी विल हेल्प 10,000 एफपीओज टू एस्टेब्लिश. नाउ हाउ डज गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम, कैसे हेल्प कर रही है. सो द न्यू एफपीओज, जो नए एफपीओ बने हैं, उनको 5 साल तक गवर्नमेंट हेल्प करेगी टू सपोर्ट देम टू स्टैंड. ठीक है, उनको सपोर्ट करेगी टिल 5 ईयर. नाउ टिल 5 ईयर द गवर्नमेंट विल गिव देम 18 लाख रुपीज टू ईच एफपीओ. जितने भी एफपीओ होंगे उनको कितने रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे, 18 लाख रुपीज. नाउ इफ देयर वर लाइक 10 मेंबर्स इन एफपीओ, अब उस एफपीओ में कितने मेंबर है, 10 मेंबर है. ईच एंड एवरी मेंबर हैव टू गिव 2,000 रुपीज. उनको कितना मैचिंग इक्विटी ग्रांट देना पड़ेगा उनको, मेंबरशिप या इक्विटी ग्रांट में कहूं, सो दे हैव टू गिव द 2,000 रुपीज हर फार्मर को. ओके, या हर मेंबर को. बट द लिमिट ऑफ एफपीओ शुड बी 15 लाख. कितना होना चाहिए, 15 लाख तक का उनका लिमिट होना चाहिए. इससे ज्यादा उनके पास मनी नहीं होनी चाहिए. ओके, सो दिस. नाउ नेक्स्ट थिंग, up to 2 crore credit guarantee facility was provided to that particular FPO by the government so that they can establish a project. अगर कोई FPO किसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहती है, कुछ कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश करना चाहती है, वेयर हाउसिंग या एनीथिंग यू वांट टू डू, दे गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रुपीज ऑफ 2 crore. ओके, एंड हु इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या इसको देख कौन रहा है, सो दैट इज योर Small Farmers Agri Business Consortium under Ministry of Agriculture. After that, state government are also providing support to the FPOs. Okay. Now there were few small agri related current affairs. So we will discuss them in brief. हम इसको brief में देखेंगे because for our exam ना most of your species, your new varieties and your what I was saying, हाँ, schemes हो गया, PIB हो गया, and few of the important like seminars were there. These are relevant for your exam. So look here, 14th Asian Fishery and Aquaculture Forum was organized. कहाँ पर organize हो रही है ये? So the theme of this organization, the theme of this particular seminar is your greening the blue growth in Asia Pacific. क्या है इसकी? greening the blue growth in Asia Pacific. ओके, सो ये 14th एशियन फिशरी एक्वाकल्चर फोरम है, जो कहाँ पर हो रही है आपकी, मलेशिया में हो, सॉरी, इन न्यू दिल्ली. इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन योर न्यू दिल्ली. ओके, दिस इज द 14th एंड विद द थीम ऑफ ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक. ओके, ये आपके ट्रायनियल इवेंट है, 3 साल में एक बार होती है. ओके, once in 3 year. Okay, and where is the headquarter of this Asian fishery and who organized this? इसकी head agency कौन है, कौन इस forum को 3 साल में एक बार organize कराता है? So that is your Asian Fishery Society. यहाँ से question बन सकता है आपका GA में कि where is the headquarter of Asian Fishery Society? So this headquarter is in your Kuala Lumpur, that is in your Malaysia. Where it is organizing, कहाँ पर हो रही है? Recent जो 14th edition है, it is holding in your न्यू दिल्ली में है. ओके, एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ इट? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक. आफ्टर दैट, हु आर प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजिंग इट? कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रेजेंटली? सो द एशियन फिशरी सोसाइटी, ICR न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द एशियन फिशरी सोसाइटी इंडियन ब्रांच मैंगलोर. सो ये क्वेश्चन भी है आपका कि जो एशियन फिशरी सोसाइटी है ये कहाँ पर है आपका? मैंगलोर में है. ओके, नाउ वन मोर थिंग इज देयर, ये जो इवेंट है ये 3 साल में एक बार होता है, एंड दिस इज द सेकेंड टाइम दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज इन इंडिया. एंड द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था, देन इट इज हेल्ड एट कोची.
ठीक है, ये 2007 में हुआ था, जो इसका 8th एडिशन था इन कोची। ओके, नेक्स्ट नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर अवेयरनेस, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री है, दे हैव मेड अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन for raising awareness under animal husbandry and animal husbandry awareness. So they have extended the timeline of it. ये आपका 13th of February को खत्म हो जाना चाहिए था ये इवेंट, but they have extended its timeline to 13th of March 2025. and who have organized, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है? So the Department of Animal Husbandry and Dairying have organized this program. ठीक है, ये अवेयरनेस कैंपेन किसने स्टार्ट किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस एंड दे हैव एक्सटेंडेड द टाइमलाइन टू 13 मार्च। अर्लियर इट वाज एंडेड, अगर ये एक्सटेंड नहीं किया होता तो ये आपका 13th ऑफ फेब को खत्म हो जाता। एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड, इसको स्टार्ट कब किया था? 14th जनवरी 2025। ओके, so next consumer price index for agriculture labor. So consumer price index क्या होता है कि earlier I was paying this much amount, like last year I have purchased a pen for a tomato for 5 rupees, and this year I am purchasing that tomato at 6 rupees or maybe at less than 4 पे भी मैं परचेज कर सकती हूँ, है ना? So that is your consumer price index. बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, एंड ब्रीफली आपको बताया। सो दिस ईयर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकते हैं आपसे कि क्या रहता है। सो दिस ईयर the consumer price index for agriculture labor is your 4.61. कितना है? 4.61. लास्ट ईयर ये ज्यादा था, दैट इज योर 7.52, मतलब ज्यादा था। इस बार क्या हुआ? कम हो गया है। सो इन्फ्लेशन कम हुई है। दिस डाटा वाज, कौन रिलीज करता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर? दीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट, आपका जो लेबरर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री रिलीज करती है, ठीक है। सो ये कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर आया देन यू मार्क्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं जीए में या आपके इकोनॉमिक्स में कि हु रिलीज द कंज्यूमर प्राइस index for agriculture labors. So most of the student I have seen, like this was the question asked 2 or 3 times in NABARD में, 2-3 बार पूछा है ये क्वेश्चन। So student क्या गड़बड़ कर देते हैं? They mark Ministry of Agriculture. So no, Ministry of Agriculture नहीं, Ministry of Labor and Employment इसको रिलीज करता है। ओके, सो रूरल लेबर के लिए कितना है? 4.73 and the base year for this is your 1986 to 87. Okay, now APE Day showcase India's organic legacy at BioFest 25. ये जो BioFest 25 है, it is holding in your कहाँ पर हो रही है? ये आपकी जर्मनी में हो रही है। and who is participating here? Your APEDA is participating. Okay, now the last one is your Shatavari. The Ministry of Ayush has really launched a campaign for the awareness of your Shatavari. Shatavari क्या है? It's a medicinal plant, okay, which is very helpful for your breastfeeding mother या lactating mother जो breast feed करती है उन mother के लिए, and it is also having very gastrointestinous properties इसके अंदर है, जो उनको like some people are facing some ulcers in their intestine, okay, digestion में problem हो रही है। So this was beneficial for them as well. So who have released? Your Ministry of Ayush has released what I was saying, awareness campaign for the Shatavari, and the campaign name was Shatavari for Better Health. And who has launched this? Ministry of State, that is Ministry of Awareness, Ministry of Ayush. And why? To raise the awareness about the health benefit of this particular scheme. Now Union Minister Shivraj Singh Chauhan, who is our agriculture minister, has launched watershed yatra. उन्होंने वाटरशेड यात्रा लॉन्च की है, एंड ये वाटरशेड यात्रा जो है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। फर्स्ट का पार्ट नहीं है, सेकंड का पार्ट है, जिसमें रिसेंटली टारगेट इंक्रीज करके लॉन्च किया था ना, ये उसका पार्ट है। दिस वाटरशेड यात्रा उन्होंने रिसेंटली अभी इसको लॉन्च किया है। अंडर दिस watershed yatra, why they have launched to raise the awareness about the watershed management projects, ठीक है। watershed के लिए like rain water harvesting या watershed के लिए awareness को raise करने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ओके, एंड he had said that कि watershed is not
only a government program. It is a जन भागीदारी प्रतियोगिता. And कितने states में? 27 state and 2 UTs में इस program को launch किया गया. Okay. हाँ, one more thing and that is very important, like Andhra based cattle, that is Ongole cattle. ठीक है, जो ओंगोले कैटल है, ये कैटल, दिस कैटल इज द वर्ल्ड एक्सपेंसिव काउ. ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. एंड व्हाट इज अ बेनिफिट, और ये क्यों जानी जाती है? दिस इज फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड हीट रेजिस्टेंस. तो आपके एग्जाम में, नाबार्ड एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओंगोल इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल, और ओंगोल कैटल बिलोंग टू विच स्टेट. सो दिस बिलोंग्स टू द आंध्र प्रदेश एंड दिस इज इन अ कैटल ब्रीड. ओके, एंड दिस वॉज इन द मोस्ट एक्सपेंसिव कैटल एंड दिस इज हैविंग हाई स्ट्रेंथ एंड हीट रेजिस्टेंस. ठीक है, इसमें ज्यादा है, इसका वेट जो है अप्रोक्सीमेटली 1100 kg होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स. वी विल, आई विल मीट यू again at 7. Okay, very good, Pawan, you are from Andhra. So this is all about for our agriculture current affairs today. Thank you so much, and I'll request to everyone, please join us again and on Saturday. ठीक है, 4 to 5 we will again be there with the agriculture current affair of current months. Okay, thank you so much and have a nice day and all the very best for your exams.